Hanji, welcome everyone. So today I am starting with the new video upon the law called as the UP Land Revenue Code, which is famously also called as the UP Local Laws or the UP Land Laws. Time and again, students were asking me that yes, I should bringing on upon the videos on the local laws. Now I have started the one. Now this would be the first video on UP land law series. Let's see how far we go upon these laws. There are many laws. If I'm not wrong, there would be not less than 6 of the local laws or land laws that are applicable in UP and that are there in the exam syllabus. Now I am coming up with a video UP Land Revenue Code and see what the topics would be coming in. तो आज सबका स्वागत है. मेरा फर्स्ट वीडियो है. ये है यूपी लैंड रेवेन्यू कोड पर, जिसको हम यूपी लोकल लॉज या यूपी लैंड लॉज भी कहते हैं. बहुत दिनों से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्यों नहीं आप लोकल लॉज या यूपी के लॉज या बाकी सब लोकल लॉज पे लेके आइए. तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं. देखा जाए तो कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम 6 लॉज तो हैं ही जो हमारे सिलेबस में हैं. वो बढ़ते ही हैं, कम नहीं है. तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा जो कि हमारे सिलेबस में है. देखिएगा. सो टुडे एज वी स्टार्ट विद दिस यूपी लोकल लॉ, there are many things, many questions, many stories have to be told, many questions have to be answered before we come across this, what the law is all about. And yes, indeed, I'll be starting with the same, what this law is all about. Now the people who know obviously would be knowing that the moment I say UP Land Revenue Code, that alone would not be sufficient, because we need to go to the erstwhile, the previous law that was called as the UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act. तो जैसे कि मैंने बोला, हम यूपी लैंड रेवेन्यू कोड पर वीडियो लेके आ रहे हैं, बट जाहिर सी बात है जिन लोगों को इसके बारे में पता है कि यूपी लैंड रेवेन्यू कोड क्या है, उनको ये भी पता होगा कि हमें यूपी लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ने से पहले एक लॉ एप्लीकेबल था उस पर जाना चाहिए, जिसका नाम है यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट. तो कहीं ना कहीं हमें यूपी लैंड रेवेन्यू कोड से थोड़ा बहुत UPZA-LR, जिसको मैं यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बोलते हैं, हम सभी उसके बारे में जाना चाहिए. कोई ना कोई चीज़ जो है वो हमेशा उसमें कनेक्टेड रहेगी. और वैसे भी हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, तो वो पुराने हैं रूट्स हैं, तो वहीं से ही कहीं ना कहीं यूपी लैंड रेवेन्यू कोड निकला, तो हमें जाना चाहिए. सो एज आई वॉज टेलिंग दैट बिफोर वी कम टू यूपी लैंड रेवेन्यू कोड, वी मस्ट गो टू द UPZA-LR 1950 also the act. Why is that so? Because somewhat to a larger extent the roots or the carving, or I would say that it has been carved out, it has been taken out, it has been developed from a previous law called as the UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950. Indeed, we must not forget the roots, so that is why we must also know the roots of the act also. So obviously it would be difficult for me to bring out each and every aspect of UPZA-LR 1950, but yes, I would be coming out with a story. I'll be coming out with few words that would make you understand, that would make you learn how to proceed, right? तो बेटा जाहिर सी बात है, सब कुछ तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा. अगर मैं आपको सारा का सारा बताऊँगा तो बड़ी दिक्कत होगी. तो कहीं ना कहीं मैं आपको शुरुआत करता हूँ कुछ शब्दों से, कुछ वर्ड्स से, जिससे हम आगे चलेंगे. तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं. अब जाहिर सी बात है, सारा का सारा अगर मैं आपको कराऊंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, और क्योंकि वो सिलेबस में है भी नहीं, तो कोई ना कोई हम नई चीज़ शुरू करेंगे. तो अब काम करते हैं कि मैं 2 वर्ड्स में लेके आया हूँ. 2 वर्ड्स में आपको 2 वर्ड से शुरुआत करूँगा और फिर देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं. सो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई एम सेइंग that beta, it would be difficult for me to come out with each and every aspect of UPZA-LR, the Act 1950, but it is better to come out with the help of 2 words only to make you understand how we would be proceeding, right? So with this let's get started. तो शुरुआत करते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 2 शब्दों से बताना चाहूँगा कि हम उसको कैसे आगे लेके जाते हैं, कैसे आगे लेके नहीं जाते हैं. Now see, as I told you, we'll be starting with the law called as the UP Land Revenue Code, right? We'll be starting with the law called as the UP Land Revenue Code 2006, right? But again, I would say that people who are aware, people who know, would be knowing that the UP Land Revenue Code has its roots or its emancipation or starting point, or it has been developed
from the law called as the UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act. I am writing in short, but please you understand what the point I am trying to make here. So this is the UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act. Obviously, in this short video or in this point of time, it would be difficult for every person to come out in detail what UPZLR would be all about, because ultimately we have to reach to this and learn what this law is all about. But still I would say to you, right, but still I would say to you that let's understand by the use of two words only what this law is all about. तो जैसे मैंने आपको बोला, मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करता हूँ कि देखो बेटा, आज का जो वीडियो है वो यूपी लैंड रेवेन्यू कोड पर है। कहीं ना कहीं जो लोग इसको जानते हैं, थोड़े बहुत ज्ञाता हैं और इसके बारे में जानते हैं, तो बोलूँगा बेटा कि यूपी लैंड रेवेन्यू कोड जो है वो कहीं ना कहीं UPZLR, जिसका नाम है यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से आया। इसी को ही डेवलप किया गया, नो डाउट ये रिप्लेस्ड है, बट कहीं ना कहीं यही आगे बढ़कर बड़ा होकर यूपी लैंड रेवेन्यू कोड बनता है। तो आइए दो वर्ड्स के साथ साथ में सीखते हैं क्या। तो मैं सिर्फ दो शब्दों से इसका आगाज़ करूँगा। सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स। नाउ इफ़ यू आस्क मी व्हाट UPZA और LR और यूपी लैंड रेवेन्यू कोड इज़ ऑल अबाउट, I would say बेटा that I would request you to consider on two words। मैं आपसे दो वर्ड्स के बारे में रिक्वेस्ट करूँगा, उस पर ध्यान लगाइए। बेटा एक तो है ज़मींदारी अबॉलिशन, राइट, वन वर्ड इज़ अबाउट ज़मींदारी अबॉलिशन। तो एक वर्ड तो ज़मींदारी अबॉलिशन है जो यहाँ से मैं लिया, ZA से लिया ज़मींदारी अबॉलिशन, और दूसरा वर्ड है LR लैंड रिफॉर्म्स। तो मैं दो वर्ड के माध्यम से आपको सिखाना चाहूँगा कि ये शुरुआत कैसे हम कर सकते हैं। तो एक है ज़मींदारी अबॉलिशन और एक है लैंड रिफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं हम ज़मींदारी अबॉलिशन को थोड़ा बहुत समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, और उसी के साथ साथ में अगर हम थोड़ा लैंड रिफॉर्म्स को भी समझेंगे तो हमें समझ में आएगा ये है क्या, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज़मींदारी अबॉलिशन को समझते हैं और फिर लैंड रिफॉर्म्स में जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये लैंड रिफॉर्म्स और डेवलप होंगे, कहीं ना कहीं जब ये लैंड रिफॉर्म्स और आगे जाएंगे, तो इस डेवलपमेंट के साथ साथ चलते चलते कहीं ना कहीं हम 2006 पर वाले एक्ट पर भी पहुंच जाएंगे। अब ये कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, लेट्स सी हाउ इट गोज। बट आज शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से, ज़मींदारी अबॉलिशन। तो पहला वर्ड है ज़मींदारी अबॉलिशन, ठीक है जी। तो ज़मींदारी अबॉलिशन पर आते हैं। बेटा इससे पहले कि मैं ज़मींदारी अबॉलिशन क्या आपको समझा सकूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का ज्ञान होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी हिस्ट्री की। तो जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम जब आज़ाद नहीं थे, या फिर कहना चाहिए कि हम आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर आते थे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट अगेन आई वुड से somewhat boring, you will be repeating something, that if you want to really come to what is UP Land Revenue Code 2006 is all about, you must come to a little bit about what is UPZLR, and I would say I would require only two words to bring you on record as to what the law is, right? The introduction as to what I say. So what I mean actually. So what I'm saying is that two words. One is Zamindari abolition, right? From the UPZLR 1950. I am bringing out the Uttar Pradesh. It is common, right? So from Zamindari abolition, ZA I am bringing Zamindari abolition, and from LRs I am bringing the land reforms. So two words, Zamindari abolition and land reforms. So I am bringing out these two words, Zamindari abolition and land reforms. So before I come to Zamindari abolition, I presume that yes, you must be having some knowledge as to the historical aspect of India. Before independence, obviously we were in the clutches of the Britishers, right? So you must understand that Britishers came to India under the garb of setting up industries and having businesses, but actually they went on to rule the country, right? Very unfortunate, but yes, this is the part of history, and we have to take it forward, right? So what I'm saying is that when Britishers came to India, they had to rule the country. They were ruling the country. Obviously, it was difficult to them to bring out as many Europeans or as many Britishers into India to have a good administration, right? So they had to use the system in India, right? But obviously, the every government is being run. It has to be run at the, I would say, at the back of a good revenue, good money, right? Everything requires money, you know, nowadays also. So when everything requires money, so does the working of the government, right?
So to bring out a system of administration or to run a government, even Britishers required a good amount of money, right? So where do they bring the money? Obviously, they would not be bringing it from the Britain, no. So they have to earn from India only, right? And what best source can be to have an income to the government than from the people who are earning in India? And as we all know, we are and we have been the agriculturally dominated country, and we still are, I would say. So obviously, only one area was more prolific where the revenue would be coming, that is agriculture, right? So they basically went on to the farmers or agriculturists in search of revenue to run the government, right? But when they went on the ground, obviously they had to face a stiff, opposition. The farmers were not agreeing to give out the money, so the Britishers have to carve out, a system so that they can run the country also, and they can have a good source of revenue also. So they brought out a concept called as, which is called as the intermediary system, right? So they brought an intermediary system. Intermediary system, again, I would say it is a part of history, but intermediary system is somewhat a middleman, with due respect to all the zamindars who would be listening to me. It was like a catalyst, I think would be the better word, so that it can handle the pressure or the cooker situation, the pressure cooker situation between the Britishers and the farmers. So basically the pressure that was building up, there has to be a catalyst, there has to be that person who will be taking care of that, right? There has to be a middleman, there has to be a bridge between the Britishers and the agriculturists. So the intermediate system, which generally we know as zamindari system or the talukdari system or the ijaredari system or the gujaradar system, these were the system basically which were forming the so-called system called as intermediate system. So we had the creation of intermediate system, which basically were the zamindars, to be very specific and prolific, who were acting as between a bridge, we can say, between the Britishers and the agriculturists. So what was happening was the agriculturists were giving the money to the these zamindars or the middlemen or the intermediaries, and these intermediaries, the zamindars, the catalyst, were giving it to the British. So this was a system that has developed, right? But fortunate enough, because of the sheer grit, strength, and courage of our ancestors, we achieved independence. And when Britishers went by, obviously their evil, British evil, the zamindari system also had to went by. So the first part is that we abolished zamindari basically, right? So बेटा जैसे मैं बोल रहा था कि जब हिंदुस्तान की बात करेंगे हम, तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की तारीख में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि आज़ादी होने से पहले, या अगर आप देखा जाए तो हिंदुस्तान पे ब्रिटिशर्स ने राज किया, राइट? तो जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाने आए थे, कहीं ना कहीं वो सरकार चलाने लगे, या सरकार उनके पास चली गई, राइट? कोई भी सरकार कोई भी चीज़ चलाते हैं, जब हम कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको सरकार चलाए तो पैसा तो चाहिए होगा। तो अब पैसा कहाँ से लाए? वो ब्रिटेन से तो लेके आएंगे नहीं, यहाँ से लूट के ले गए। तो कहीं ना कहीं उनको जो इंडिया का सिस्टम था उसी को यूज़ करना था, और इंडिया के सिस्टम को यूज़ करके ही उनको सरकार, यहाँ पे सरकार चलानी थी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। अब यहाँ पे पैसा किससे लिया जाए? उसी से लिया जाए तो यहाँ पे शायद कमाता होगा। और जैसे कि आज भी हैं, हम तब भी रहते हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं, तो हमारा हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है। तो जब हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, तो हम कृषि, जो लोग कृषि है या भूमिहर हैं, या फिर जो खेती है जिसको बोलते हैं, किसान बोलते हैं, एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, तो उन्हीं से तो पैसा लेंगे, बिकॉज वही कमा रहे हैं और वही इंडस्ट्री चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया गया। अब जाहिर सी बात है, जब अंग्रेज़ उस किसान के पास जो मेहनत कर रहा है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स, हमें अपने फार्मर्स के ऊपर प्राउड होना चाहिए। जब उनके पास गए तो फार्मर्स ने अपोज किया, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और वो क्यों लगान जिसको हम बोलते हैं उनको दे दिया जाए, द फेमस मूवी, राइट? सो कहीं ना कहीं एक रिसेंटमेंट था, एक अपोजिशन था, कहीं ना कहीं शायद क्यों करना भी चाहिए, किसानों ने इसको अपोज किया कि हम आपको क्यों रेवेन्यू दे दें, आप तो बाहर से आए हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को एक ऐसा सिस्टम लेके आना था, उनकी मजबूरी बन गई थी कि जिससे वो अपनी सरकार चला सकें और वो रेवेन्यू भी आ सके। अब उसके लिए उन्होंने बेटा, विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगा, इज्जत के साथ कहूँगा, बिचौलिया सिस्टम लेके आए, एक इंटरमीडिएट सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब मैं बोलूँगा एक कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट होता है जो कहीं ना कहीं प्रेशर को रिलीज़ करवाता है।
तो वो जो प्रेशर, वो द्वंद्व की स्थिति आ गई थी, कहीं ना कहीं वो जो एक बात आ गई थी एग्रीकल्चरिस्ट और में, फार्मर्स में, किसानों में और अंग्रेज़ों में, उसको कहीं ना कहीं उनको संभाला। तो बीच में हम ज़मींदारी सिस्टम को लेके आए। तो ज़मींदारी सिस्टम को हम कई रूप से जानते हैं, जो हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री में शामिल है, जिसका नाम है ज़मींदारी सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम, ताल्लुकदारी सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है वो अमल में लाए गए, बहुत सारे सिस्टम जो है वो लेके आए गए, जिससे हमारा जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो चलानी शुरू करी अंग्रेज़ों ने। अब वक्त के साथ में हमारे बड़े बूढ़ों की वजह से, उनके कार्य की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हमें आज़ादी मिली, वी शुड बी प्राउड ऑफ। लेकिन जब आज़ादी मिली तो अंग्रेज़ गए, तो हमने सोचा कि भाई अंग्रेज़ चले गए तो उनकी जो भी गलत चीज़ें थी, जो भी उन्हें गलत सिस्टम से, जिसमें एक शायद ज़मींदारी भी आता था, उसको भी हमने अबॉलिश किया। और बहुत सारे नारे बुलंद किए गए कि ज़मीन जो है खेतीहर की, कृषि की जो भूमि है, जो कृषि करता है उसे की होगी, हर किसी को काम करना चाहिए, और ये जय जवान जय किसान, बहुत सारे नारे आए, और जो कि आज भी हैं और आज भी वाजिब हैं, और इट इज़ वेरी मच देयर। So what I'm saying is, when the Britishers went by, the time had come that not only the Britishers are going by, all the British evil should also be, put with them to be taken. No, so we abolished zamindari, right? So what I'm saying is, from the concept called as Britishers coming to India, and from the concept of the intermediate system coming, when the Britishers had went by, so does the system, right? So we were back to square one. We were back to the system which we had belonged to, and now it was, I would say, a time had come to bring out a system, right? To bring out a new system, right? But with due respect, also one more thing is there, that no doubt we had an intermediate system, but there is also a line, there is also a verb proverb, whatever they say, there is a saying, what they say, that when there is a power, it corrupts you, and absolute power corrupts absolutely, right? So it was time and again it was seen that there was an abuse basically done by these intermediaries, with due respect to them. Some abuse was done, and yes, the situation was not what we anticipated, right? So a time had come to change a particular system, and from that is why I'm telling you, from this first word called as zamindari abolition, we are moving to the new phase called as land reforms, right? So I'll be bringing out the land reforms also, right? तो बेटा एक बात बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल पार्ट थोड़ा, कि अब कि बिचौलिए आ गए, इंटरमीडिएट सिस्टम आ गया, अगर अंग्रेज़ चले गए तो उनका सिस्टम भी चला जाना चाहिए, तो उनका सिस्टम कहीं ना कहीं चला गया। तो जब अंग्रेज़ों का सिस्टम चला गया, अंग्रेज़ों की चीज़ें चली गई, तो कहीं ना कहीं एक और कहावत नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि एक ऐसी सेइंग है, ऐसे लोग बोलते हैं कि जब पावर आती है आपको करप्ट करती है, और शायद जब एक असीमित और अनकंट्रोल्ड पावर मिलती है तो शायद आप उससे थोड़े से करप्ट हो जाते। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट शायद ऐसा हुआ कि शायद वो चीज़ें नहीं हो पाएँ जिसका हमने सपना देखा था, या शायद वो चीज़ नहीं बन पाई जो हम उम्मीद करते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज़मींदारी सिस्टम होने की वजह से शायद सिस्टम वैसे नहीं काम कर पाया, और अब्यूज़ के कारण शायद वो सिस्टम लचर हालत में आ गया, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं चल पाया, तो शायद हमें उसको भी ठीक करना था। और इसीलिए अगर आप देखें, उन दो शब्दों का प्रयोग मैंने किया कि हम पहले शब्द दूसरे शब्द पे आएंगे। पहला शब्द था ज़मींदारी अबॉलिशन, हमने ज़मींदारी अबॉलिशन की, और उसके बाद हम किस पर आए, हम उस पर आए फिर हमारे लैंड रिफॉर्म्स में। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो भी ज़मीनों का जो स्टेटस है, ज़मीनों की ओनरशिप है, ज़मीनों का मालिकाना हक है, उसमें शायद चेंजेस की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारी ज़मीनें जो शायद किसी की थी किसी और की हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं वो जो रिसेंटमेंट पहले था वो फिर से आ चुका था। कहीं ना कहीं किसानों में, वो जो किसान है वो शायद अपनी ज़मीन को खो चुका था, और कहते हैं कि शायद किसान को सबसे ज़्यादा प्यार में ज़मीन से होना भी चाहिए, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज अ टाइम हैड कम बेसिकली वेयर वी हैड टू मेक द चेंजेस, राइट? एंड एज आई टोल्ड you from the first word, we are coming on to the second, that is called as the zamindari abolition. We are moving to the land reforms, right? And now the people who know me might be knowing it, and I hope so remembering me, but see, I have a very, I would say, I don't know, it is a problem, I have a problem of repeating things, right? With due respect to your, I would say, patience, I would say to you, I'm sorry for being repetitive, but I must tell you frankly that when I am teaching, when I am recording a video, I am basically no doubt recording it for you, but to a larger extent, I am trying to explain to myself also what the topic is all about, So in my mind, I am repeating because so that I can, clearly understand, and
it is there in my mind, so I keep on repeating. So I'm so sorry if I'm keeping on repeating things, but I think I'm trying to pacify and learn for myself also, so it is like this I'm repeating, so please bear with me on this. तो जो लोग मुझे जानते हैं मेरी पढ़ाई को या तरीके को वो पहले जानते होंगे, उनको पता होगा इस बारे में, और आई थिंक वो मेरे को भूले नहीं होंगे। तो बस मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि एक बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं अपने आप को भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बेटा क्वेश्चनों में ना किसी भी जब मैं पढ़ाता तो मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ, तो प्लीज़ आप बोर मत होइएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अपने दिमाग में रिटेन करना चाह रहा हूँ, मैं याद करना चाह रहा हूँ, अच्छा ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ठीक है। तो चलिए, तो कमिंग बैक, सो फ्रॉम द जमींदारी अबॉलिशन वी आर कमिंग टू अ वर्ड कॉल्ड एज लैंड रिफॉर्म्स। अब हम लैंड रिफॉर्म्स, तो वी आर कमिंग टू लैंड रिफॉर्म्स। नो बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, आई मस्ट टेल यू दैट what are we talking about when we say land reforms? See, land reforms means beta that a situation had come. Now understand this. What is happening is that we had farmers, right? We had agriculturists. Now they had the duty to pay land revenue, and when they were not doing those duties, when they were not doing their duties, THEIR here, not THER here, they are unki apni. So when they were not doing their duties, obviously some action has to be taken, right? So the zamindars, the intermediaries were taking those actions, right? And in those actions what was happening was, with the I would say passage of time, it was seen that the farmers kept losing their lands, no? So they were losing their lands basically, whatever permutation combinations were there, right? So there were many farmers who were found to be landless, though they were having lands. So what I am saying is that I would not say that the system had come to a standstill, no, but there was a problem with the system, right? So we had to bring the land reforms. Now when we talk about land reforms, no, or we are going in the context of the constitution also, to a larger extent land reforms, what I mean and what would be coming would be that there has to be an equal distribution of wealth. We have this in mind, that there has to be an equal distribution of wealth. We also had a saying, we also had a nara, we also had a verb, proverb, whatever they say, that the land should belong to the tiller, no? So we were also onto this aspect, that the land should belong to the tiller. So in this, since there was a huge concentration of wealth with among some certain individuals, there were certain individuals holding too much land, no? So we had to bring this, right? So we were about to bring land reforms, and land reforms is nothing but it was basically that we have to redistribute the land properly, and we have to see how it happens, right? So I'll be using the board and telling you how it happened. तो बेटा मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि जब ज़मींदारी एबॉलिशन हुआ तो सिस्टम शायद ऐसा ख़राब हो चुका था कि ये देखा गया वक्त के साथ में कि वो जो एक कृषि भूमि को होल्ड करता था, वो जो कृषि था, वो भूमिधर था, उसकी लैंड उसके पास से चली गई थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी लैंड रेवेन्यू पे करना, और क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे तो उन पे एक्शन तो मुनासिब था, जायज़ था। तो जब वो एक्शन लिया गया तो देखा गया वक्त के साथ में कि उनकी ज़मीनें चली गई थी। और कहीं ना कहीं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करनी है, सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर है, तो हमने उसके हवाले से भी हमने लैंड रिफॉर्म्स किए। सो बेस्ड अपॉन दैट वी ऑल्सो डिड लैंड रिफॉर्म्स। नाउ हाउ वी डिड दैट, व्हाट वी डिड दैट, लेट मी शेयर दैट विद यू बेटा, दैट अल्टीमेटली हमने किया क्या, हम करने क्या वाले थे, हमने क्या किया, ठीक है जी। तो वापिस चलते तो बेटा हम करने क्या वाले थे, हमने एक्चुअली किया ये क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लैंड रिफॉर्म्स किया, ठीक है जी। तो बेटा हमने लैंड रिफॉर्म्स किया। तो जब हम लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बेटा लैंड रिफॉर्म्स को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म्स को समझना, आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेटा हमने अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी किया, ठीक है, हमने किया अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। तो सबसे पहले हमने अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी किया, जो कि बड़ा सिंपल है कि हमने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फिर साथ साथ में एक कंसेप्ट आता है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स। हमने क्या किया बेटा, हमने वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स किया। ये वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स का मतलब ये है कि हमने जो ज़मीनें थी कहीं ना कहीं माना कि ये स्टेट की हो जाएंगी, कहीं ना कहीं हमने माना ये स्टेट की हो जाएंगी, वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स। और जैसे मैंने बोला, मैं रिपीट करता हूँ, शायद थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग भी ख़राब है, खराब नहीं काफ़ी ख़राब है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं शायद मेरा अपना फॉन्ट है, ठीक है। चलिए, सो अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी हमने की और हमने एक वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स किया।
अब इस पे थोड़ा सा एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेना चाहूँगा, थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर वो वीडियो बड़ा हो जाता है और फिर मज़ा नहीं आता है. सो विल बी कमिंग ऑन अ सेपरेट वीडियो. आई थिंक abolition of zamindari would not require so much, but I might be coming up with a new video, right? But I think one thing would be vesting of estates, right? So vesting of estates, I'll be coming in what it meant, no. So vesting of estates, I'll be coming in, right? Beta, the third thing which you must know, which obviously also has somewhat history, so that, and this history would be acting like a base to the UP Land Revenue Code also, and that would be various land tenure holders, right? Land tenure holders. You must understand about various land tenure holders. Till the time you are not knowing what these land tenure holders are, it would be difficult for you, right? And I would say that this system, this topic, this would be acting as a base. No, not only it would help us out in understand the UP Zamindari and Land Reforms Act, it would also help us out in understanding the UP Land Revenue Code, because ultimately this base is going forward in this code, right? And you must know what it is all about. So obviously there would be a detailed video upon this, because I have to tell you what is the meaning also, and yes, who are the individuals that were there in, right? So there is an amazing concept called as land tenure holders, which is very much important as a short question also and a big mains questions also. So I'll be telling you both the aspects, right, in this. So don't worry about this. I'll be coming in a separate video. I'm not counting here, right? तो बेटा आगे बढ़ने से पहले आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो मैंने ज़मींदारी अबॉलिशन तो आपको थोड़ा बताना चाहा और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताना चाहा. तो लैंड रिफॉर्म्स भी कैसे हुए, तो कहीं ना कहीं बेटा लैंड रिफॉर्म्स में भी अगर आप देखें तो हमने ज़मींदारी को अबॉलिशन किया. तो थोड़ा सा अगर मैं इसका रंग बदल दूं, इसका अपना नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर रंग बदल दूं तो देखा जाए तो बेटा हमने पहले अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी किया. तो हम लैंड रिफॉर्म्स में ही जो ज़मीनों के सुधार जिसको बोलते हैं उसके लिए हमने ज़मींदारी को अबॉलिश किया. वो क्या किया थोड़ा बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, एक कंसेप्ट होता है वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स. तो ये वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि और बेटा वेस्टिंग ऑफ एस्टेट्स क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी जो एस्टेट्स हैं वो स्टेट के पास चले गए, वो सरकार के पास चले गए. अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या रिपरकशन है, क्या इसका मतलब है, वो मैं आपको बताऊंगा सेपरेट वीडियो पे. उसके बाद में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है लैंड टेन्योर होल्डर्स. लैंड टेन्योर होल्डर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये बेस है, क्योंकि हम ना कि सिर्फ हम यूपी ZLR यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन को समझेंगे, बट यूपी लैंड रेवेन्यू कोड का भी ये बेस बनेगा. बिकॉज यही कुछ लोग हैं जो आपको इस एक्ट में मिलेंगे. ना कि सिर्फ ये आपको मेंस में छोटा क्वेश्चन या है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये उसका एक मैं कहना चाहूँगा कि एक बेस है. तो इसको समझेंगे लैंड टेन्योर होल्डर्स कौन होते हैं, और क्योंकि मेरे को इसको आपको तो अभी मीनिंग भी बताना है कि लैंड टेन्योर होल्डर्स हैं क्या, कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग, राइट. तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और हम बहुत मैं कहूँगा कि जल्द ही इसके एक डिटेल्ड वीडियो पे आएंगे, ठीक है ना. तो डिटेल्ड वीडियो पे मैं आपको लेके आना चाहूँगा कि इसको हमें कैसे करना है. तो चिंता नहीं कीजिएगा बेटा, इसका एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने आएगा, और मैं कोशिश करूँगा, बस आपकी दुआएं चाहिए पीछे. सो बेसिकली आई वुड से दैट यस, a big video would be coming in the sense of big videos in the sense of not big as to the timings, but yes, there are many videos would be coming on this. So I would say that these things would be coming, right. And for me I think these are very important to make you understand what it's all about. तो धीरे धीरे करेंगे ना, शनै शनै गच्छामि बोलते हैं. सो शनै शनै गच्छामि बोलते हैं. तो what I'm saying is slowly will be moving ahead, right. So this was the first type of introduction, something like that, what things would be coming. And I wish and believe that yes, with your blessings and your demands, I'll be coming to much more videos, right. So these were the two facts which I wanted to bring. One is abolition of zamindari, and then yes, the land reforms. So don't worry beta, wait, I'll be coming with more videos. So आपका धन्यवाद आज के लिए, पेशेंस के लिए, और आपकी अगर दुआएं रही, हमें दुआओं में याद रखिएगा. तो आपकी दुआएं रही, प्रार्थना रही, तो आप भी प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए. तो हम और वीडियोस लेके आएंगे आपके बारे में, इसके बारे में, यूपी ZA के बारे में, आपके बारे में क्यों, यूपी ZA के बारे में और लेके आएंगे, यूपी लैंड रेवेन्यू कोड के बारे में लेके आएंगे. ये दो शब्द जिसमें आज शुरुआत करी, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, और उसको मैं और एलैबोरेटिव वीडियोज़ लेके आऊँगा. ठीक है जी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय, मिलते हैं.